Hi and good evening, everybody, and I hope everyone's doing well. So today we are gonna put out a pilot of the new course that we're gonna put across on our platform LCI, lawyersclubindia.com, which is gonna be Constitution of India, which is going to be pulled on by one of the best teachers, speakers that I have come across, Dr. Ravi Shankar More sir. He's been a teacher for the last 22 years, and he has a lot of feathers in his hat, on his hat, and a lot of achievements under his belt. And for what I have known is that sir की एक अपनी खुद का fandom है student community में, and that is what he is known for. Some salient features of the course for those who are viewing us for the first time on YouTube or on our website. This is going to be a course जिसके लिए हमने अभी तक timeline कोई design नहीं करी है. We have just an approach, an idea that we are going to do this until we exhaust our subject, which is the Constitution of India, which in itself is going to take a decent amount of time. So वो आगे हमें पता चल जाएगा कितना time लगेगा, but it's gonna be almost 1 or 2 hours a week that we're gonna study together. Study material सबको दे दिया जाएगा. You are all gonna get access to the recordings of all the sessions. If you want to join live, you are most welcome. If you can't join live, you'll get the recordings of the session. Now, Constitution of India, this is not for a particular class of people. It's not for only judiciary people. It's not for the litigators, not for the teachers only or the law students. It's for everyone, and it's actually very useful for each and every one of us. चाहे वो litigation करने जाएं, तो we are gonna have to have a literature, and anytime you use constitution, it's gonna put a lot of weight in your words that you are using in a magisterial court or a high court, a constitutional court. आप law student हैं तो आप जानते ही हो कितना जरूरी है. Judiciary aspirant हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी subject है. You have to know it. एंड उसी तरह हर तरह के लोगों के लिए बहुत जरूरी सब्जेक्ट होने वाला है. सो ऑल अदर डिस्कशन, ऑल अदर डिटेल्स you'll get on the Lawyers Club India page, or you can get in touch with us. Without wasting any more time, I will give it up to More sir now, and we'll start with the lecture on emergency provisions in Constitution of India. Thank you. So in the series of lectures on the different topics of the Constitution, today we are having the lecture on the emergency provisions of the Constitution. Dear friends, जब हम आपातकाल की बात करते हैं तो ये भारतीय संविधान की जो मूल आत्मा है उसके विरुद्ध दिशा में हम कुछ बात कर रहे हैं, ऐसा कई बार कहा जाता है. So emergency provision is not in accordance with the spirit with which we have formed this constitution, beautiful constitution. This is something which is exactly opposite to what we intend to achieve through this constitution. And what is that for which we had this beautiful constitution? So my dear friends, we were missing the fundamental rights in the Government of India Act 1935. We were missing the basic freedoms, and therefore we were at par with the slaves. We were not enjoying the environment. We were not enjoying the circumstances. We were not enjoying the liberty to optimum utilize our capabilities, to enrich ourselves in the literature, in the matters of finances. So we were having the potential and capacity, but we were not allowed to express ourselves, to optimum utilize our capabilities. And that is what was the objectives behind framing this beautiful constitution, whereby the people, citizens of free India, can flourish to their maximum capacity. अगर ये ऑब्जेक्ट था भारतीय संविधान का कि इस आजाद देश में हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके अपना संपूर्ण विकास, व्यक्तिमत्व विकास, अपनी इच्छा, आकांक्षा, विचार और अपनी क्षमता, उसका भरपूर उपयोग करने की
पूरा अवसर प्रदान करना, ये अगर उद्देश्य था, तो फिर ये इमरजेंसी, ये आपातकाल का सिचुएशन और उसको हैंडल करने के लिए प्रावधान, ये तो एक प्रकार से मिसफिट हुआ। और इसके कई उदाहरण भी थे इतिहास में। अगर सबसे बुरा उदाहरण हम देखना चाहे तो हिटलर, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो उस वक्त वहां हुआ करता था, उसमें भी इमरजेंसी प्रोविजन, और उस इमरजेंसी प्रोविजन का मिसयूज कर कर ही हिटलर ने अपना डिक्टेटरशिप को एक प्रकार से एस्टेब्लिश किया। तो इतना बुरा इतिहास, और फिर भी हमने चाहा कि हमारे संविधान में इस प्रकार का प्रावधान हो। कुछ तो वजह रही होगी। Constituent Assembly, which was made by the best of the best brains which were available in the country by that time, how could such kind of provisions get through the Constituent Assembly? My dear friends, emergency का नाम लेते से ही हमारे मन में कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती। एक सर्वसामान्य आदमी, एक कॉमन मैन, आप उसको कहिए कि इमरजेंसी, तो वो इमीडिएटली एक निगेटिव रिएक्शन देगा। आप कहीं पर भी चले जाइए पूरे देश में, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा भी जानकार है और उसको इमरजेंसी पीरियड, इंदिरा गांधी या इमरजेंसी शब्द का प्रयोग भी आपने कर लिया, तो इट विल गिव अ बैड काइंड ऑफ फीलिंग। बहुत पॉजिटिव ऐसा फीलिंग नहीं आता। इतिहास भी बुरा है और ये भारत के संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पारित हो जाता है और भारत के संविधान में एक यूनिक तरह का हम चैप्टर ऐड कर देते हैं। कैसे संभव हो पाया? क्या तर्क दिए होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस प्रावधान को रखते हुए? कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से इस प्रकार के प्रावधान हम संविधान में डालने के लिए असेंबली को मना पाए? क्या देखा होगा असेंबली में? तो माय डियर फ्रेंड्स, याद करिए उस समय का मंजर, भारत के पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद देश में एक प्रकार का कट्टरतावाद, धार्मिक कट्टरतावाद। हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे वेर ऑन द एक्सट्रीम एंड एंड दे डोंट वांट टू सी ईच अदर इनटू द आईज। इस प्रकार का वातावरण पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं। पार्टीशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, और फिर भी हमको वो स्वीकार करना पड़ा। उसमें माइग्रेशन, अनप्लान्ड माइग्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स, और बिकॉज ऑफ दिस अनप्लान्ड एंड अ लार्ज स्केल माइग्रेशन, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हमने देखा। द फ्रीडम एट मिडनाइट, अगर आपको मौका मिले तो बुक जरूर पढ़िएगा। गदर में जो दिखाया गया है वो तो बहुत छोटा है। यू विल सी द हार्श रियलिटी ऑफ दैट गदर। अगर आप बुक पढ़ते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट, आपके पास समय हो तो जरूर पढ़िएगा। इट वाज रिटन बाय द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, who was party to almost all the discussions into the chambers of the Rashtrapati Bhavan, then Viceroy's house. जो भी डिस्कशन हो रहे थे सबको पार्टी था, because he was taking the notes and he has written that book Freedom at Midnight. You will get the live picture कि what was happening then. और उस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस देश में बने हुए हैं, रायोट्स हो रहे हैं जिधर उधर। सिर्फ रायोट्स नहीं हो रहे, तो कुछ छोटे छोटे राजा अपना इंडिपेंडेंस रखना चाहते, बिकॉज ब्रिटिशर while giving the independence don't want to keep any kind of liability with them, because they had entered into an agreement with the smaller states, princely states, and now while conferring the independence they don't want to carry any kind of baggage in the future whereby they could be held responsible for any kind of compensatory amount to be claimed by such princely states, and therefore they declare that all sorts of agreement with the princely states are hereby
cease to have effect and you are having independence, all the princely states, and they can decide by themselves कि आपको whether they want to go with the dominion of India or dominion of Pakistan. तो जब ये प्रिंसली स्टेट छोटे छोटे करीबन 600 के करीब वो सारे आजाद हो गए, उनको भी असिमुलेट करने का एक बड़ा हरकिलियन टास्क विद द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के साथ था, सामने था। कुछ छोटे छोटे स्टेट्स अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते थे, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, और ये एक समस्या थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि कैसे छोटे छोटे स्टेट्स को एक किया जाए। ये भी समस्या है सरकार के सामने थी। देखिए, हम एक देश बना रहे हैं जिसमें हमने फेडरल स्ट्रक्चर को स्वीकार किया, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे और दे विल बी एक्टिंग ऑन द सेम सेट ऑफ पॉपुलेशन। दो गवर्नमेंट एक ही पॉपुलेशन को जब कंट्रोल करती है, गवर्न करती है, तो स्वाभाविक है कि दोनों के पावर में एक फ्रिक्शन होने की संभावना बनी रहती है। और एक अभी अभी आजादी जिसको मिली है, ऐसा देश, उसको ये छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स, उनको भी संभालना है, असिमुलेट करना है, उनको इस देश का हिस्सा बनाना है, वो भी एक समस्या सामने है सेंट्रल गवर्नमेंट के। और भी बहुत सारी समस्याएं थी, यानी रायोट्स है, सोशल हार्मनी मिनिमम लेवल पर आ चुकी है, प्रिंसली स्टेट्स की समस्या है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे कि हम उस वक्त, अगर कोई किराएदार 25-50 साल आपके घर में रह जाए और उसके बाद घर छोड़कर जाता है ना, तो वो भी उसको तहस नहस करके चला जाता है, कुछ छोड़ता नहीं है। हमारे पास तो ऐसे भी किस्से हैं कि मंत्रीगण भी नल की टोटियां भी निकाल कर ले चले जाते सरकारी आवास में से। तो अंग्रेज जब इस देश को छोड़कर गए, तो क्या वो भरपूर पैसा और बहुत हमारे पास रिसोर्सेस छोड़कर गए होंगे? हमारे फाइनेंशियल हालात भी बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे थे, उस समस्या को भी संभालना है। तो ये सारी सिचुएशन वे आर कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट सॉल्यूशन, a solution which would be a temporary kind of medicine, जिसको हम लॉन्ग टर्म में अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये समस्याएं जो टेम्पररी थी, जिनको टेम्पररी और डिफरेंट तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी हो गया था, इन सारी बातों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये स्वीकार करना पड़ा। अगस्त 1949 में डिस्कशन हुआ कि इमरजेंसी के प्रोविजन हम रखना चाहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब इन बातों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया कि देखिए, देश में कम्युनल हार्मनी मिनिमम लेवल पर है, फाइनेंशियल इश्यूज है, छोटे छोटे स्टेट्स इंडिपेंडेंस क्लेम कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री का इश्यू है। तो ये सारी समस्याओं को हम कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न, जिसमें कि हम हर एक को लिबर्टी देना चाहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उस पैटर्न से हैंडल नहीं किया जाता। ये समस्याएं एक अलग प्रकार की समस्या है, जिनको सॉल्यूशन भी अलग लगेंगे। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से पूछा गया है कि तो समस्या टेम्पररी है, परमानेंट प्रोविजन क्यों कर रहे हैं संविधान में, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि these letters and the papers on the emergency provision in the constitution would be dead letters thereafter and would never be used, उसका कभी उपयोग नहीं होगा। ऐसा आशावाद, एक ऑप्टिमिज्म उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा, और ऐसा एक एग्रीमेंट भी हो गया। सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे उस समय राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति, इससे ओतप्रोत थे। तो उनको लगा कि हाँ, भविष्य में ऐसा कोई आजाद देश का नागरिक या सरकार कभी नहीं करेंगी कि जिसमें इमरजेंसी टाइप ऑफ सिचुएशन अराइज हो जाए, और इसलिए ये जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे
ये एक टेम्पररी सिचुएशन को हैंडल करने में काम आएंगे और भविष्य में शायद इनका कभी उपयोग ना हो। और इसलिए 3 प्रकार के इमरजेंसी प्रोविजंस हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं। आर्टिकल 352, 356 एंड 360 ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 358, 359 भी आपने पढ़ना चाहिए। कम से कम इतने प्रोविजन को आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो क्या है ये, कौन सी टाइप की इमरजेंसी है? तो बिफोर वी गो इनटू द टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 352, 356, 360, 358, 359, let us have a brief discussion. What do you mean by emergency? आपातकाल किसको हम कहते हैं? इस शब्द का अगर मैं आंसर आपसे लेना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इमरजेंसी सिचुएशन इज द सिचुएशन विच कॉल फॉर इमीडिएट एक्शन without looking into rightness or the wrongness of the action. When you have to respond immediately, that situation can be called as a emergency situation. यानी आप बाइक से चल रहे हैं और कहीं से कोई पंछी या बड़ा बर्ड किसी स्नेक को अपने पैर में उठाकर उड़ रहा है, बट ही कुड नॉट कीप द होल्ड ऑफ दैट स्नेक, और वो स्नेक आपके ऊपर आकर गिर जाता है बाइक पे, आप राइड कर रहे हैं। अब उस वक्त आप, मैं राइट में चलाऊं, लेफ्ट में चलाऊं, स्लो चलाऊं, ब्रेक लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इतना सोचेंगे? आप इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। यू विल जस्ट थ्रो द स्नेक अवे फ्रॉम यू। फिर वो कहाँ जा रहा है, किसी और को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। तो व्हेन इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटली आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, ऐसी सिचुएशन उसको हम कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, इमरजेंसी के बोर्ड लगे होते हैं कि सब काम को साइड में रख दो, पहले इसको हैंडल करो। एक बहुत पुराना लेकिन हमेशा इमरजेंसी जिसको हम समझ सकते हैं, उसका एक उदाहरण है। आजकल जितनी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है उतनी पहले नहीं हुआ करती थी। पहले गिने चुने बस सर्विसेज हुआ करते थे। आप एक बार बस में बैठ गए तो 2-3 घंटे बाद ही वो बस रुकेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिर अगर किसी को बीच में टॉयलेट, कॉल ऑफ नेचर आ जाए तो ये भी उसके लिए इमरजेंसी सिचुएशन है। फिर वो ये देखता नहीं है कि स्टॉप अभी आया नहीं है और क्या सोचेंगे लोग। ही विल इमीडिएटली रश टू द ड्राइवर और द कंडक्टर और रिक्वेस्ट करेगा कि भाई गाड़ी रोक दो, अब कंट्रोल नहीं होता। तो इमरजेंसी इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर अब क्या राइट है क्या रॉन्ग है, आपके फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहे हैं, पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट हो रही है, कुछ हद तक हम उसको डिनाई कर रहे हैं, इसका विचार नहीं किया जाए, बिकॉज सिचुएशन इज मोर ग्रेवर देन योर इंडिविजुअल राइट्स। तो इमरजेंसी सिचुएशन ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस है which call for sometime we can say so the drastic solution which may affect your individual rights. तो कौन से सिचुएशन को कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर करता है कि दिस इज एन इमरजेंसी सो फॉर एज नेशन इज कंसर्न? एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर कौन से सर्कमस्टेंसेस को हम मानते हैं कि ये इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस है? तो 3 प्रकार के सर्कमस्टेंसेस और 3 प्रकार के इमरजेंसी की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। नेशनल इमरजेंसी, और एक लूज लैंग्वेज में हम जिसको कहते हैं स्टेट इमरजेंसी, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 3 सर्कमस्टेंसेस। नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वॉर। अगर देश का युद्ध शुरू हो जाए तो क्या उससे बढ़कर कोई सिचुएशन रह सकती है? यू हैव टू हैंडल इट फर्स्ट because your very existence as a nation is in danger. बहुत दुख के साथ अटल बिहारी वाजपेयी, then prime minister, when Kargil war happened, जब उनकी सरकार चली गई कुछ वर्षों बाद उन्होंने कहा
कि 99 का कारगिल वॉर शुरू था, इंडिया वॉज एट वॉर विद द पाकिस्तान, कभी उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया पाकिस्तान, लेकिन परोक्ष रूप से पाकिस्तान उसमें था। तो उन्होंने बहुत दुख से कहा था, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो थे और इस लड़ाई को जिन्होंने हैंडल किया था एज एन एग्जीक्यूटिव हेड, उन्होंने एक अपने मन की व्यथा बताई थी कि इसके पूर्व जितने युद्ध हुए देश ने जिन जिन आक्रमणों को सहा और जिनका मुकाबला किया, उन सारे युद्ध और कारगिल युद्ध, इसमें एक फर्क, मूलभूत फर्क मुझे जो महसूस हुआ कि कारगिल वार के वक्त देश एक साथ खड़ा नहीं था। जिस प्रकार से अन्य युद्ध के समय पूरा देश एकजुट था, इंक्लूडिंग द अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन में जो बैठी, वो सिचुएशन, उस प्रकार का वातावरण या उस प्रकार का सौहार्द, उस प्रकार की समझदारी राजनीतिक पार्टियों ने पर्टिकुलरली कारगिल युद्ध के समय नहीं दिखाई। इस प्रकार की भावनाएं, अपना दुख अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने एक लेख में लिखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सिचुएशन आपको अगर सेंसिटाइज नहीं करती है कि व्हेन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ दिस नेशन इज इन डेंजर, व्हेन कंट्री इज एट वॉर, नेशन इज एट वॉर, तो फिर कौन सी सिचुएशन? और देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एग्री, they agreed to include the first circumstances or the situation to be named as the situation calling for the drastic solution is when the country is at war. तो 352 में जो 3 circumstances दिए गए, उसमें से पहला सिचुएशन जो कॉल फॉर इमरजेंसी करता है वो है वॉर। दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में थोड़ा सा फर्क, वॉर ये दोनों तरफ से लड़ा जाता है और एक्सटर्नल एग्रेशन में आप सिर्फ अपने आप को डिफेंड करते हैं। और इंटरनल आर्म रिबेलियन एज इट स्टैंड टुडे, आज की जो प्रोविजन है आर्टिकल 352 की, उसके हिसाब से इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हमने रिप्लेस कर दिया, बिकॉज दैट वाज अ वेग काइंड ऑफ टर्म टू इम्पोज द नेशनल इमरजेंसी। और आज जो शब्द है वो आर्म रिबेलियन, कि अगर भारत की एग्जिस्टेंस को खतरा आंतरिक ही हो जाए, और ये खतरा जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाकर नहीं, बल्कि हथियार उठाकर भारत के एग्जिस्टेंस पर कोई सवाल लगा दे, तो इस सर्कमस्टेंसेस को भी हम नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की सर्कमस्टेंसेस मानते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन। तो ये नेशनल इमरजेंसी कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में लगाई जा सकती है, वो ये 3 है: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल आर्म रिबेलियन, जहां पर भारत का अस्तित्व धोखे में आ जाए। इसके अलावा और एक सर्कमस्टेंसेस जिसको कि हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं या प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, वो है आर्टिकल 356। When there is a failure of constitutional machinery in a state, यानी भारत के किसी प्रदेश में अब संविधान के मुताबिक, संविधान के हिसाब से वहां का राज कारभार चलाना इम्पॉसिबल हो गया है। When it has become impossible to run a state as per the provisions of the constitution, संविधान के हिसाब से अगर किसी स्टेट का, किसी प्रदेश का गवर्नेंस करना अगर इम्पॉसिबल हो जाता है, और इस प्रकार का रिपोर्ट गवर्नर के माध्यम से प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द प्रेसिडेंट्स रूल इन दैट स्टेट। ये भी एक इमरजेंसी अरेंजमेंट है। बिफोर वी गो फर्दर, 356 में ये जो प्रावधान है, जिसको कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि दिस शैल बी द डेड लेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
which shall probably will never be again used. They have been used more than 100 times post independence. देखिए राजनीति यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जिन प्रावधानों के बारे में ये कहते थे कि शायद इनका पुनः कभी उपयोग ना हो, हम देखते हैं कि आजाद भारत में 100 से भी ज्यादा ओकेजन, अभी 100 साल पूरे नहीं किए हमने आजादी के, और प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज किया जाता है स्टेट में, यानी ऑफिशियली circumstances are such that the state machinery has completely failed and collapsed, whereby the constitution cannot be implemented. Constitutional mechanism total collapse हो गया है. क्या हम इसको स्वीकार कर सकते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये विश्वास दिखाया था कि भारत के लोग एडल्ट फ्रेंचाइज irrespective of your tax paying capacity or the character, irrespective of your education, हर किसी के मत विचार लेकर राष्ट्र में हम प्रतिनिधि चुनेंगे और वो सरकार बनाएंगे, इतना विश्वास जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को था, आज अगर उनके कोई मेंबर जिंदा हो या होते तो उनको दुख होता था कि इस देश में 100 से अधिक बार ऐसे सिचुएशन ऑफिशियली आपने स्वीकार किए कि जहां किसी प्रदेश का काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल सकता. यू हैव बीन फेल्ड नॉट वंस और ट्वाइस बट ऑलमोस्ट 100 टाइम्स, whereby constitutional machinery is officially failed in a particular state. अब इसमें से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग से, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, कि प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 356 आर मोर मिसयूज्ड देन दे आर यूज्ड. दे आर मिसयूज्ड ऑन मोर ओकेजन्स देन दे बीइंग यूज्ड. तो आपने उसका उपयोग नहीं किया, आपने उसका दुरुपयोग किया, आपने उसका मिसयूज किया. इसका मतलब वास्तविक रूप से वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन फेल नहीं हुआ था. You being the politician, you have been failed and you have failed this country. तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अगर किसी प्रदेश में, किसी भाग में, किसी राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चलाना कठिन हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए. तत्कालीन कारण वो थे जब यहाँ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर ऐसी समस्याएं कुछ प्रांतों में थी, लेकिन आज हमने उसका क्या यूज और क्या मिसयूज किया आप देख सकते हैं. और फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सपांड करना पड़ा एसआर बोम्मई की केस में, और कहना पड़ा कि ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अबाउट grave circumstances exist in a particular state where the functioning of the state as per the provisions of the constitution is not possible. This is also not immune from the judicial scrutiny. यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सेटिस्फैक्शन कि वहां सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि जहां संविधान के हिसाब से कार्य करना अब असंभव हो गया है, ये जो सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो सेटिस्फैक्शन भी इम्यून नहीं है फ्रॉम द जुडिशियल स्क्रूटिनी. यानी कोर्ट उसमें भी जांच पड़ताल कर सकता है कि क्या सच में आपने जो कंक्लूजन निकाला कि वहां पर सरकार अब संविधान के हिसाब से चलाना इम्पॉसिबल हो गया है, इस पर भी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकती है. ऐसा उनको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करना पड़ा कि 356 is not immune from the judicial review because you have failed the constitution, you have failed the constitution makers. तो ये एक सर्कमस्टेंसेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 356 की आवश्यकता ही नहीं है. There do exist the circumstances whereby it is
impossible to form a government in a particular state. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेयर द विजनरीज, उनको पता था कि हमेशा संविधान के हिसाब से आइडियल सर्कमस्टेंसेस होंगी, जरूरी नहीं है। तो ये प्रावधान उन्होंने उन सर्कमस्टेंसेस के लिए रखा था, लेकिन उसका मिसयूज करने वाले लोग हमको बहुत मिले, और इसलिए आज हम उसको ज्यादा क्रिटिकली पढ़ते हैं rather than studying it in a positive context. और एक सर्कमस्टेंसेस जिसको कि इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक उसका उपयोग नहीं हुआ, थैंकफुली। आर्टिकल 360 में वी स्पीक अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसा कि जब हम आजाद हुए तो हमारे हालात ऐसे थे कि हमारे पास बहुत अधिक फॉरेन करेंसी का रिजर्व नहीं था। आप जितना इंपोर्ट करते हैं उतना आपके पास फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए कि एटलीस्ट यू कैन सर्वाइव फॉर 21 डेज। दूसरा, whatever credit you take from the international bodies, monetary funds, other governments, and if that amount is a due and a country fails to repay its due beyond 21 days after it becomes a due, the credit of that country is in danger and that country will be put into the blacklist. तो अगर किसी देश में ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ जाए, सिचुएशन आ जाए कि जहां पर वो अपना कर्जा, अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरा करने की तिथि से 1-2 दिन लेट नहीं, आप अगर 21 डेज लेट हो जाते हैं तो मान लिया जाता है कि अब आपके पास संसाधनों की कमी होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट दैट कि अगर ऐसे सिचुएशन इस देश में आ जाए तो उसको भी हैंडल करने के लिए हमारे पास एक प्रावधान होना चाहिए। अगर हम इन इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस को हैंडल करने के लिए प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करते हैं तो हमारे पास एकमात्र उपाय रह जाएगा to suspend the constitution to handle the emergency. The countries whose constitution do not bear such kind of provisions, उन countries में जब emergency situations आती है, what they have to do, they have to suspend the entire constitution. एक पार्लियामेंट्री लॉ पास करते हैं, पास करने के बाद में पूरा संविधान सस्पेंड कर देते और इस नए कानून के तहत देश को चलाया जाता है सर्कमस्टेंसेस को हैंडल करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नहीं चाहते थे कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी इनऑपरेटिव, और इसीलिए हमने इमरजेंसी प्रोविजंस यहाँ रखे। तो ये 3 प्रकार के सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस हमने देखे जिसको कि हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। अब इनको लगाने का एक सर्वसामान्य प्रोसीजर फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी हो या स्टेट इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन विल ऑलवेज कम फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ही इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। लेकिन इसमें भी काफी बदलाव हुए। देयर वाज अ टाइम the third national emergency which was proclaimed on 25th June 1975 and which was revoked on 23rd March 1977. Almost for 21 months, this country was like a big prison, and that brought the bad name to the emergency provisions of the Indian Constitution. The first emergency when we had the war with China, which lasted for 6 years, but didn't brought a bad name. Second emergency during the war with the Pakistan, second war. In the first emergency, we had the war with China and immediately with Pakistan also, 1965. Second emergency, another war with the Pakistan. But they didn't brought that kind of bad name to the provisions of the Constitution as they have been misused. It is the third proclamation of emergency, which was made without the knowledge of the members of the cabinet. देखो, देश चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर,
लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज द representative of the council of ministers. He is only the head of the council of ministers. The real executive powers are vested in the council of ministers, which is headed by the prime minister. Now this council of ministers includes the state ministers, ministers with the independent charge, and the cabinet ministers. Cabinet ministers are those core group of ministries and the ministers which actually takes the decision on all the important issues affecting the nation and the governance. When Mrs. Indira Gandhi, then Prime Minister, advised to the then President of India, Mr. Fakhruddin, I'm forgetting his full name, but Mr. Fakhruddin, President of India, she advised him to proclaim the emergency immediately. And even the cabinet ministers were not taken into the confidence. They were not aware that Mrs. Indira Gandhi is going to declare the emergency or impose the emergency. And that is how it was felt that there must be a kind of amendment into the provisions of Article 352. It is not just another aid and advice of the Council of Ministers headed by Prime Minister, with the aid and advice of which the President shall act. हम President of India को titular head कहते हैं कि वो अपने मर्जी से कुछ नहीं करते. As per the aid and advice of Council of Ministers, he has to act, and that is imperative on him to act. Hardly he get liberty to act independently, particularly in the matters regarding completion of the tenure of the Lok Sabha. Then he gets a kind of little liberty to act independently because Council of Ministers itself is not in existence. तो ये जो सर्वसामान्यता हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनके हेड प्राइम मिनिस्टर ये जैसा एडवाइस करेंगे वैसा ही काम करना है, तो क्या ये इमरजेंसी की बात भी इतनी सिंपल थी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा और प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया? एंड देयरफॉर द नीड वाज फेल्ट टू आर्टिकल 352. और इमरजेंसी के बाद जब जनता सरकार बनी और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वाज अ सॉर्ट ऑफ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फिर रिवर्स किया गया. यानी 42वीं घटना दुरुस्ती जिसको हम कहते हैं वो इतनी बड़ी थी कि ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही रीराइट किया गया मिसेस इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी के दौरान. तो ये जो बदलाव हुए थे उन सारे बदलावों को रिवर्स करते वक्त 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई जिसमें कि बहुत सारे बदलाव को हमने फिर से पूर्व रूप में स्थापित किया, उसी समय इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि ये जो इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई थी की जानकारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी नहीं थी कि ये इमरजेंसी प्रोक्लेम होने वाली है, तो आगे से ऐसे सर्कमस्टेंसेस ना बने. ये नाउ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 352 स्टैंड्स आफ्टर 44th constitutional amendment that the President of India can proclaim the national emergency either for whole of India or any part of it on the grounds of situation of war, external aggression or internal armed rebellion. When he used a written communication from the Council of Ministers headed by Prime Minister that the situation of any one of these three types do exist either in the whole of India or any part of it, threatening its existence
as a nation, he can proclaim the emergency. प्रोक्लेमेशन का प्रोसीजर जो है नेशनल इमरजेंसी में हमने रिटिफिकेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा कर दिया। प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन पहले जैसा हुआ था कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को मालूम था, अब फिर से कभी ऐसा ना हो, इसलिए आज हमने क्या किया, रिटर्न कम्युनिकेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये रिटर्न कम्युनिकेशन आया कि है, प्रोक्लेम करिए, इन्हें कर दिया, लेकिन उसके एक महीने के भीतर विद इन 1 month from such proclamation of emergency a resolution is to be passed affirming such proclamation from both the houses of the parliament. लोकसभा और राज्य में हमें कानून ही नहीं बनते, पर रिजोल्यूशन भी पास होते। कई बार कुछ सिर्फ निर्णय लिए जाते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा सिर्फ कानून बनाती है ऐसा नहीं है, कुछ रिजोल्यूशन पास करती है। कई बार किसी बातों को कंडेम किया जाता है कि हम इस देश में गुरुद्वारा पर जो अटैक हुआ उसको कंडेम करते हैं। तो अगर इस प्रकार का इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा ऑन रिटन कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उसके एक महीने के भीतर बाय 2/3 मेजॉरिटी उसको अप्रूवल देने वाला रिजोल्यूशन लोकसभा और राज्यसभा में पारित होना आवश्यक। अदरवाइज दैट इमरजेंसी जो प्रोक्लेम की गई है वो एक महीने में अगर ऐसा रिजोल्यूशन पारित नहीं होता है तो इट सीज टू हैव द इफेक्ट। ओनली इफ लोकसभा इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, तो राज्यसभा में पास करना है, और जैसी लोकसभा का गठन होगा उसका सेशन विद इन 30 days फ्रॉम दैट आपको रिजोल्यूशन पास करना है। यानी दोनों हाउसेस जहां रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल एट लार्ज, हम देखते हैं ना इस देश में डेमोक्रेसी, यानी हम हमारी सरकार के द्वारा देश चलाते हैं, हमारी सरकार यानी हमारे मतों से बनी हुई सरकार, तो उन दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी से ये रिजोल्यूशन अप्रूविंग द इमरजेंसी पास होना जरूरी। एक बार अप्रूवल हो गया तो आप अनंत काल के लिए इमरजेंसी लगा देंगे ऐसा नहीं। इस अप्रूवल की वैलिडिटी होंगी 6 months, यानी जिस दिन डिक्लेरेशन दिन से, जिस दिन अप्रूवल दिन से नहीं, on which the emergency was proclaimed, it will be approved by the houses of the parliament for 6 months मैक्सिमम पीरियड। ऐसा नहीं कि 6 महीने के पहले उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उसका प्रोसीजर है विड्रॉ करने, लेकिन मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूं मैं कि दोनों हाउसेस में प्रोक्लेमेशन के एक महीने के भीतर उसको अप्रूव करना है, और ऐसा अप्रूवल वैलिडिटी देता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। 6 months से आगे आपको और बढ़ाना है, फिर से अप्रूवल दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी के साथ। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होती है 2/3 मेजॉरिटी, यानी सरकार बनाने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी लगती है, और 2/3 मेजॉरिटी यानी सिर्फ आप सरकार आपकी है इसलिए ये बिल पास कर लोगे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर अब आपको अपोजिशन का भी मदद लेना हो, तो 2/3 मेजॉरिटी से इस रिजोल्यूशन को पास करना होता है, एंड मैक्सिमम वैलिडिटी फॉर 6 months। लेकिन आप ऐसे अप्रूवल लाते जाइए और 6 month एट वंस उसको एक्सटेंड करते हुए फॉर एनी पीरियड देयर कुड बी इमरजेंसी, जब तक सर्कमस्टेंसेस है। किसने सोचा था कि यूक्रेन वॉर इतना लंबा चलेगा, इतना छोटा सा देश और इतने बड़े कंट्रीज या बड़ी शक्ति उसने आक्रमण किया, लेकिन आज उसको 4 महीने हो गए चल रहा है। तो नेशनल इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस कैन लास्ट लॉन्ग फॉर अ लॉन्गर पीरियड इवन, तो 6-6 महीने के लिए आप उसको बढ़ाते जाइए, उसका कोई अपर लिमिट नहीं है। नेशनल इमरजेंसी का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स किस प्रकार के विजनरी रहे होंगे।
कि आप इमरजेंसी प्रोविजन को यूज कर रहे हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में है ना, यानी देश अभी भी कानून से चल रहा है। और हो सकता है कि आप पूरे देश में इमरजेंसी ना लगाए, किसी एक हिस्से में लगाए, बॉर्डर वाले स्टेट्स में लगा दे और पूरा देश व्यवस्थित चल रहा है। ये हो गया प्रोक्लेमेशन का, नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी है तो 2 महीने का समय मिलता है अप्रूवल के लिए लोकसभा और राज्यसभा में, यानी गवर्नर रिकमेंड करेंगे और अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो जाए ऑन द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नर that there is a failure of constitutional machinery in a state, if president is satisfied, then he can proclaim a president's rule. President's rule यानी उस पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी लागू हो गई और उसके परिणाम क्या होते हैं हम आगे देखें। अभी हम प्रोक्लेमेशन को समझ रहे हैं। तो गवर्नर हैज सबमिटेड हिज रिपोर्ट that there is a failure of constitutional machinery in a state, and if the president is satisfied, president का satisfaction में मतलब council of minister headed by prime minister, क्योंकि president as such अपने आप decision नहीं लेते। if they are satisfied then there can be proclamation of state emergency। लेकिन state emergency के मामले में लोकसभा और राज्यसभा में फिर से रिजोल्यूशन लाने की जरूरत है, वो भी 2/3 मेजोरिटी से। लेकिन इस समय जो समय मिलता है वो 2 महीने का मिलता है कि 2 महीने में आपको अप्रूवल टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी। वैलिडिटी वही है फ्रॉम द डिक्लेरेशन 6 मंथ, लेकिन इसमें अपर लिमिट है कि सिचुएशन आपको कंट्रोल में लानी है। मैक्स टू मैक्स you can extend the emergency 6 months at a time up to 3 years, 3 years maximum। 3 साल तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है स्टेट में, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 साल में वहां इलेक्शन नहीं करा पा रहे, वहां कंट्रोल में नहीं ला पा रहे, तो ये आपका फेल्यूर है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स सेज दैट कि नो, you have to establish the constitutional machinery in the state, तो देयर इज अ अपर लिमिट 3 साल मैक्स टू मैक्स प्रेसिडेंट को। उसके दौरान आपको वहाँ सिचुएशन नॉर्मल करनी है, वहाँ इलेक्शंस लेने हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वहाँ एस्टेब्लिश करनी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इट्स जस्ट लाइक अ नेशनल इमरजेंसी। रिटर्न कम्युनिकेशन व्हेन क्रेडिट ऑफ इंडिया इज इन डेंजर। आजकल हम बहुत सुन रहे इस बात को। हमारे पड़ोसी 3 देश अफेक्ट हुए हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और एक कोई कंट्री है जहां पर अभी हालात, नेपाल। ऐसे हो गए कि उनका नेशनल क्रेडिट डेंजर में आ गया बिकॉज दे हैव बोरोड टू मच। आपको अपना क्रेडिट कितना लेना है सोच समझ कर ही लेना चाहिए। तो कुछ देशों ने मिल रहा है लोन इसलिए ले लो, और अब वो चुकता नहीं कर पा रहे तो उनका क्रेडिट डेंजर में आ गया। तो अब हम सुनते हैं ऐसी बातें हमारे पड़ोसी देशों से। अगर वैसी सिचुएशन कभी इस देश में बन जाए तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। वी शैल कंटिन्यू आवर डिस्कशन in the next part of our lecture. Thank you for being part of this discussion. Have a nice day. Thank you so much, sir. Thank you. I think मुझे पहले तो I'll have to say मैंने या तो emergency procedures पे किसी को provisions पढ़ाते हुए देखा है सिर्फ, या फिर किसी को सिर्फ कहानियां सुनाते हुए देखा है। This is the first time I have listened to a lecture on provisions, or for that matter any lecture on constitution जिसमें the anecdotes also, we have UN assembly debates also, we have the provisions also, we have the actual dates of it also. And plus sir, or you know, I have I've seen कि जितने भी हमारे ट्रेनर्स आते हैं ना, एक खूबी होती है अच्छे ट्रेनर की हमेशा, जो सब में एक सार होती है। जितना प्लान किया होता है उससे ज्यादा ही पढ़ाते हैं। So just to let my viewers know, मैंने प्लान किया था कि ये लेक्चर
from जी, the very starting, the commencement of the emergency provisions till the end, नहीं हो 15 से पाएगा 20 मिनट में कर लेंगे. So right नहीं now, हो पाएगा. I think we have done 50 minutes और अभी हमें एक पार्ट और करना पड़ेगा. So ये करना पहचाने पड़ेगा. टीचर्स की. So Yes, yes. और मुझे अभी कुछ क्वेश्चन चलिए. थे, हम अगले पार्ट में ही करेंगे. आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द पीपल राइट नाउ एंड दे विल बी एबल Yes. टू what is coming next. And I Yeah. invite everyone with open arms and come and Yeah. join us, बिल्कुल. see what you can learn बिल्कुल. from this course. And I think once you have taken this course, not have to go to any other place to learn about constitution. Yeah, yeah. Absolutely. We'll try our level best. It Right, was sir. nice talking to you. Sir, thank you so much. It's our pleasure, it's our honor. Thank you so much. Thank you. Have a nice day.